तो आज ऑल्टरनेटिंग करंट क्लास 12th फिजिक्स में हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू सम सर्किट एलिमेंट्स लाइक AC थ्रू resistor, AC थ्रू कैपेसिटर एंड AC थ्रू इंडक्टर। पहले सेपरेट देखेंगे और फिर कंबाइंड देखेंगे, बिकॉज फाइनल गोल वही है अपना, is that is called AC through LCR circuit and then series LCR. So let us do it one by one. That the first is AC through resistance when we talk about AC through resistance, तो ऐसा करते हैं, एक रजिस्टर ले लेते हैं, रजिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं with AC source and then a key में कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है TK stands for tapping key, and here we'll have symbol for AC, which is, and then resistor. When tapping key is closed, there will be flow of current. This EMF or voltage is E naught sine omega t. So what about the current? We know, we write I as V by R, so it can be E by R, which means we can write E naught upon R sine omega t. We know this E naught upon R is also current, so we write for this I naught sine omega t, equation 2. And if we compare these two equations, so from equation 1 and 2, we conclude that I, which is current, is in phase, phase में है या phase difference नहीं है दोनों के बीच, with voltage और EMF, voltage और EMF across resistor R, right? This is the conclusion. Now on the basis of it, we basically do two things. First is called time diagram. And when we talk about time diagram, means flow of AC with time. Simple. Let's say this is the all about flow of AC, which is voltage. Let's say this is the E naught. And because as such there is no phase lag, something like that, so we draw like this, the red one for current. So this we can call I naught. Now for the same, we do phasor diagram. Phasor diagram we draw like this arrow. Both the peak value of voltage and current are shown with the help of the arrow. So this represent E naught and this is phi. Now we want to show the current. So if you see over here, the EMF की this is the peak और ये current की peak है, तो इसी पे एक मार्किंग दे देते हैं, ऐसे लिख देते हैं I naught. तो ये फेजर हो गई हमारी करंट और वोल्टेज की, राइट?
तो हमने शुरू करी थी कि AC थ्रू रजिस्टर, सेकेंड विल बी नाउ AC थ्रू let's say inductor. Okay, AC through inductor. AC through inductor L. तो हमने जैसे ऊपर सर्किट बनाई थी एकदम ऐसे ही बना सकते हैं और रजिस्टर के बदले एक इंडक्टर कनेक्ट कर देते हैं। बाकी चीज एज यूजुअल, चाहे तो EMF बीच में नहीं लिख के यहाँ पे AC लेटा हुआ एस का साइन बना देते हैं और फिर यहाँ पे टैपिंग की है, टैपिंग की को क्लोज कर देते हैं। तो देयर विल बी करंट इन इट और EMF तो एज यूजुअल है इक्वेशन 1 वाली। तो फिर से हम करंट चाहते हैं अक्रॉस इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर है हम जानते हैं इंडक्टर के अक्रॉस तो बैक EMF अपने आप आ जाती है, आती है, राइट। तो एनी चेंज अक्रॉस इट, राइट। तो जब ये अपोज करती है किसी चेंज को EMF और बैक EMF, तो दिस सोर्स EMF must overcome this back EMF, then only flow of current will establish. So this EMF is minus of L di upon dt. We do in EMI chapter. And because minus of minus मतलब सोर्स के ऑपोजिट है ये, तो ये प्लस हो जाएगी और हमें चाहिए क्या, तो करंट। तो हमें मिल गया DI। तो DI को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लिख सकते हैं E अपॉन L dt। और E के लिए अपना इक्वेशन 1 तो है ही है, E नॉट साइन ओमेगा टी। सो वी हैव E नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt। तो LHS में DI और RHS में जो इक्वेशन है, इनको हम DI को I में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल मैथमेटिकल वे क्या है, तो इंटीग्रेट कर लेंगे। तो लेट्स इंटीग्रेट एंड देन विल फाइंड समथिंग। व्हाट, लेट अस सी। Okay, so when we look into it, तो DI integration is E naught upon L is constant and sine omega t dt. E naught upon L as it is constant factor, sine theta integrated gives us minus cos theta minus cos omega t upon में omega, right? So we have E naught upon omega L, and cos omega t can be sin omega t, sin omega t, तो sin 90 minus theta. So minus sign is already existing, so we can write it from identity sin omega t minus pi by 2, right? Again E naught by omega L मतलब voltage by something, it is like voltage by resistance. So therefore we write it like I as I naught sin omega t minus pi by 2. This is equation 1. और फर्स्ट क्या था, हमेशा की तरह
E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज के लिए तो ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो इन दोनों से अगर हम कंपेयर करें, फर्स्ट वाले में साइन ओमेगा टी, सेकेंड वाले में साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब क्या हुई, तो इंडक्टर के अक्रॉस ये बैक ईएमएफ के कारण करंट लैग करने लगा बाय पाई बाई टू। दिस लैगिंग ऑफ करंट हम कंक्लूड ऐसे करते हैं कि thus we conclude that I lags, पीछे है, behind EMF और voltage by कितने से पीछे है, by पाई बाई टू। इस तरीके से इंडक्टर के अक्रॉस पाई बाई टू से पीछे हो गई। और अगर पीछे है तो पहले वाले की तरह टाइम और फेजर डायग्राम से पहले हम लोग जरा इस ओमेगा एल को ई नॉट बाई एक्सएल को अलग से कुछ ओमेगा एल को हाईलाइट करते हैं। तो वी आर राइटिंग आई नॉट एज ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। ओमेगा एल के लिए एक सिंबल यूज करते हैं एक्स एल, और अगर हम आई वी बाई आर से कंपेयर करते हैं तो दिस एक्स एल बेसिकली इट इज फॉर रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर फॉर एसी, और एक्सएल को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड दिस इज ऑल अबाउट मीनिंग क्या हुई इसकी, तो ओपोजिशन टू एसी बाय इंडक्टर, राइट, इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, एक्सएल की यूनिट क्या होगी, जो रेजिस्टेंस की होती है। ओके, यूनिट विल बी व्हाट वी हैव यूनिट फॉर रेजिस्टेंस, एसआई unit of XL will be ohm only. Now इसमें एक बात और हमें दिख रहा है कि see in this that XL, what we write omega L, and omega can be 2 pi into frequency into L. तो XL proportional to F। अगर हम इसके ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल, करेक्ट, दिस इज F। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधी लाइन हो गई, तो ये हमें प्रोपोर्शनैलिटी को दिखाता है, राइट। तो नाउ वी वांट AC थ्रू कैपेसिटर। तो कैपेसिटर, लेट अस मेक ए कैपेसिटर, और कैपेसिटर से AC कनेक्ट कर देना है, एक की या टैपिंग की लगा देना, राइट। इसको की या टैपिंग की कहते हैं। AC की सिंबल हो गई C हो गई। टैपिंग की अगर हम, इट ऑलवेज कलेक्ट्स चार्ज, एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, डायरेक्ट तो इससे और कुछ फ्लो होना नहीं है। तो इसमें एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगी, वी, दिस V मस्ट बी ओवरकम बाय द सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए,
जो ये पॉजिटिव नेगेटिव के कारण से वोल्टेज डेवलप हो रही है। लेकिन मैथमेटिकली हम इक्वेट करते हैं, E कैन बी V इक्वल, और V के लिए हम क्या लिखते हैं, Q बाई C। तो Q हमें मिल रहा है, तो Q को हम लिख सकते हैं V इंटू C। हमारा मोटो क्या है, करंट को स्टडी करना। तो I को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, I हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस Q, सिंस वी नो I as dq by dt, which means we can write like d upon dt, और Q के बदले V इंटू C। V को यहां से हम हमेशा की तरह V नॉट साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो V नॉट C तो पहले से है, और साइन ओमेगा टी, विच मीन्स V नॉट C तो कांस्टेंट फैक्टर है, हमें डिफरेंशिएट कर देना है साइन ओमेगा टी। तो हम जानते हैं साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, लेकिन ये कांस्टेंट भी है इसके साथ ओमेगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम लिखेंगे I एज V नॉट C कांस्टेंट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। सेम हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, V नॉट अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा C, एक ही बात है, इंटू कॉस ओमेगा टी। आइडेंटिटी अगर हम लगाते हैं, सबसे पहले 1 अपॉन ओमेगा C के बदले एक सिंबल यूज करेंगे XC, जैसे इंडक्टर में XL किया था, और XC के बदले 1 अपॉन ओमेगा C होगा। कहते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके, तो देयरफॉर I को हम लिख लेते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, 1, ये सेकेंड लेते हैं हमेशा, और E के लिए जैसा वी ऑलवेज कॉल E नॉट साइन ओमेगा टी, या V इज V नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि I में प्लस पाई बाई 2 का फैक्टर एडिशनल है, और इसी से कंक्लूड करते हैं कि I लीड कर रहा आगे है बाय पाई बाई 2 विद EMF या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये कंक्लूजन हो गई हमारी। और जैसा हमेशा करते थे, बिफोर वी कम टू टाइम एंड फेजर, यहाँ पे जो XC ले रहे हैं इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। XC इज फॉर 1 बाय ओमेगा C। ओमेगा हमेशा की तरह 2 पाई इन फ्रीक्वेंसी इंटू C टू XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, विच मीन्स अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इट विल बी लाइक दिस, XC y एक्सिस के लॉन्ग और टाइम हमेशा x के लॉन्ग। दूसरी बात, अगर हम DC में देखें तो DC में एसएस फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है, डिफाइंड XC 1 अपॉन 2 पाई f के बदले 0 इंटू C, ऑल टुगेदर 1 अपॉन 0, इट गिव्स अस इंफिनिटी। तो इंफिनिटी हमें ये कहता है कि XC इट ब्लॉक्स DC, तो डायरेक्ट DC फ्लो नहीं हो सकती कैपेसिटर से, क्योंकि इन्फिनिट रेजिस्टेंस देती है। जैसे एक्सल का नेम दिया था, वैसे ही XC का अगर हम नेम दें तो व्हाट नेम वी कैन गिव टू XC, लाइक वहां था इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो यहाँ बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इनका भी वही काम है, मतलब करंट को अपोज करना। तो वी कॉल इट व्हाट,
Xc का नेम क्या हो गई? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस which opposes flow of AC across capacitor, right? Across capacitor। तो इनकी भी यूनिट ओम ही होनी है। अब अगर इनके लिए टाइम डायग्राम प्लॉट करें तो हमेशा की तरह पहले वोल्टेज के लिए इसमें कोई चेंज नहीं, एज इट इज साइनसॉइडल वेव ई नॉट, और इनके साथ हमने दिखाना है करंट की वेरिएशन। तो करंट यहाँ पे क्या है? π/2 फैक्टर से लीड कर रहा है। तो लीड करना मतलब यहाँ पे ये 0 है तो यहाँ पे 90 हो जाएगी, राइट? तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, राइट? और अगर हम फेजर ड्रॉ करें फेजर डायग्राम, तो फेजर विल बी रोटेटिंग वेक्टर। दिस इज फॉर EMF ई नॉट, एंड करंट ने लीड करना है तो इसको इधर, ये हो जाएगी I नॉट। दिस विल बी फॉर I नॉट। और दोनों के बीच की एंगल कितनी होनी चाहिए? तो ये हो जाएगी 90, और ये हमेशा की तरफ फाई ओमेगा टी, ये टाइम के लिए। इसी कंपैरिजन में अगर हम कैपेसिटर के लिए ड्रॉ करते थे टाइम डायग्राम, दैट कुड बी लाइक दिस EMF एज इट इज। और अगर करंट की बात करें तो करंट वाज लैगिंग, तो लैग करना यहाँ नीचे से शुरू करते हैं, राइट? ऐसे कुछ, तो ये कुछ ऐसे लेंगे, जहां ये 90 है वहां 0, जहां पे ये 0 है वहां पे 90, तो 0 था तो 90। तो दिस विल बी फॉर I नॉट इन कैपेसिटर, E नॉट। और इंडक्टर में लैग करना ऐसे दिखाई, पहले वाले हमारा कैपेसिटर है जिसमें करंट लीड करना है, तो ऊपर से जहां ये 0 है तो वो 90, और इसमें जो 0 है तो ये 90। ये दोनों का कंपैरेटिव ड्रॉ कर दिया तो समझना थोड़ा आसान है। आई थिंक होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।